اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچ چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923222361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، گزشتہ کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج الحمدللہ شہر پربھنی جو علاقہ مہاراشٹر کا ایک بڑا شہر ہے، علاقہ مرٹھواڑہ کا پربھنی، آج وہاں پر جمعیت علماء ارشد مدنی مہاراشٹر کا ایک تربیتی اجلاس دوپہر 2 بجے سے لے کر عصر تک ہونے جا رہا ہے، جس میں حضرت مفتی معصوم ثاقب صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں دہلی سے، اور بعد نماز مغرب اجلاس عام ہوگا جس کا عنوان ہوگا تحفظ اوقاف اور تحفظ دستور، جس میں میری اور حضرت والا مفتی معصوم ثاقب صاحب کی تقریر ہوگی۔ اس لیے میں سفر پر نکل چکا ہوں، کیمرے کے سامنے نہیں ہوں، اسی لیے آواز کی شکل میں آپ تک خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے سفر کو بے انتہا آسان فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان خدمات کو بے انتہا قبول فرمائیں، آمین۔ آئیے، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ، آپ جانتے ہیں کہ مودی جی کے بڑے جگری دوست ہے، اور یہاں کی ہماری گودی میڈیا بہت گنگان گاتی ہے مودی جی کی اور ٹرمپ کی دوستی کی، اور بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ مودی جی کتنے بڑے آدمی ہیں، لیکن ٹرمپ ہے کہ مودی جی کو دھوکہ دیتے ہی جا رہا ہے اور مودی جی کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچاتے ہی جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرمپ نے پھر ہندوستان کے سینے پر خنجر گھونپ دیا، سینے میں ٹیرف جو لگانے والا تھا، اب وہ ٹیرف 25% سے بڑھا کر 50% کرنے کا اعلان کر دیا ڈونالڈ ٹرمپ نے۔ 27 اگست سے یہ ٹیرف لاگو ہو جائے گا۔ ڈونالڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے کہ ایگزیکیوٹیو آرڈر پر سگنیچر، دستخط، ہندوستان اچھا تجارتی پارٹنر نہیں ہے، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مودی جی کا ڈنکا کتنا اچھا بج رہا ہے۔ اسی کو لے کر کانگریس نے کہا کہ ٹرمپ کا ہندوستان پر مسلسل اقدام اور مودی کی خاموشی، بھارت پر 50% ٹیرف لگانے کے بعد کانگریس اب پی ایم مودی پر جارحانہ ہو گئی ہے۔ کانگریس نے روس سے تیل خریدنے کی وجہ سے ہندوستان پر عائد اضافی ٹیرف کے بارے میں ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بنایا۔ کانگریس نے تنزیہ انداز میں کہا کہ نریندر مودی کے دوست ٹرمپ نے اب ہندوستان پر 50% ٹیرف لگا دیا ہے۔ کانگریس نے الزام لگایا کہ ٹرمپ بھارت کے خلاف مسلسل قدم اٹھا رہا ہے، لیکن مودی ٹرمپ کا نام تک نہیں لیتے، انہوں نے مودی سے جواب مانگا ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا نقصان ملک کو اٹھانا پڑے گا۔ ناظرین، بڑی دردناک افسوسناک خبر اتر کاشی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اتراکھنڈ کے ضلع اتر کاشی کے دھرالی اور ہرشل علاقوں میں بادل پھٹنے کے بعد پیدا ہونے والی شدید آفت میں اب تک
135 अफराद को महफूज बचा लिया गया है, लेकिन इस आसमानी आफत का कहर ऐसा है कि 19 अफराद अभी भी लापता है। 138 अफराद को बचा लिया गया है। हेलीपैड पूरा तबाह हो गया है। फजाई मदद बंद हो गई है। नदियों में तुग़यानी और तूफान का माहौल है। यात्रा कैंसिल कर दी गई है। मामला गुज़िश्ता कल पार्लियामेंट में गूंजा। हुकूमत फौरी तौर पर मुस्तकबिल की आफत से निपटने के लिए एक जामे मंसूबा तैयार करें। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के 51 श्रद्धालु अकीदतमंद उत्तराखंड में फंसे हुए हैं। हुकूमत मुतहर्रिक हो चुकी है। नायब वज़ीर आला अजीत दादा पवार ने बुध के रोज कहा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के धराली इलाके में बादल फटने के बाद वहां फंसे महाराष्ट्र के 51 अकीदतमंदों और सयाहों को वापस लाने के लिए रियासती हुकूमत ने तेजी से इकदाम शुरू कर दिए हैं। इनमें से 11 अफराद का ताल्लुक नांदेड़ जिला से है, जबकि दीगर सयाह रियासत के मुख्तलिफ जिला से है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि बिहार में अब इलेक्शन जीतने के लिए भाजपा हर तरह का षड्यंत्र कर रही है। अभी खबर आ रही है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों की तफसील सामने आई है और उन्हें कहा गया है कि 3 दिन में जमा करें। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है। बिहार में वोटर्स की हुई खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR मामले पर ADR ने सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज एक अर्जी दाखिल की थी। गुज़िश्ता कल उस पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए गए तकरीबन 65 लाख वोटर्स की तफसील पेश करे। इसके लिए अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 3 दिनों का वक्त दिया है, यानी तफसीलात आइंदा 9 अगस्त यानी शनिचर तक इलेक्शन कमीशन को पेश करनी होगी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल अंबानी को दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में अनिल अंबानी से 10 घंटे पूछगछ हुई और जो कुछ भी बयान उन्होंने दिया है उसकी वीडियोग्राफी भी हुई और ये भी खबरें आ रही है कि दोबारा तलबी का इम्कान है, यानी दोबारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल अंबानी को ईडी दिल्ली बुला सकती है। मशहूर बिजनेसमैन अनिल अंबानी से ईडी ने मंगल के रोज नई दिल्ली में वाक़ अपने हेडक्वार्टर में मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में तकरीबन 10 घंटे तक पूछगछ की है। ये पूछगछ बैंक कर्ज के मुबैना गलत इस्तेमाल और फर्जी कंपनियों में रकम की मुंतकिली के इल्जामात के तहत की गई है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की साबिक तर्जुमान आरती साठे की जज के तौर पर तकर्रुरी का कॉलेजियम वापस ले रोहित पवार ने इस तरीके से डिमांड किया है, मुतालबा किया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार के जनरल सेक्रेटरी और रुकने असेंबली रोहित पवार ने गुज़िश्ता कल मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हिंदुस्तानी अदलिया के गैर जानिबदाराना किरदार पर शदीद खदशात का इजहार किया है, क्योंकि अगर आरती साठे को जज के तौर पर लिया जाता है तो वो तो बीजेपी की साबिक तर्जुमान रही है, एक्स स्पोक पर्सन रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे लोग जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं अगर उनको जज बनाया जाएगा तो फिर आप अंदाजा लगाए कि अदालतों में क्या हाल होगा और इंसाफ का कैसे मर्डर और कत्ल होगा। इसलिए रोहित पवार ने कहा है कि जज के तौर पर इनकी तकर्रुरी का कॉलेजियम वापस लिया जाए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि SIR यानी वोटिंग लिस्ट पर गहरी नजरसानी को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और अपोजिशन पार्टियां जोरदार आवाज उठा रही है। इसी को लेकर अब खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों से यह कहा कि SIR पर अफवाह न फैलाएं और तस्हीह के लिए एतराजात दर्ज कराएं। इलेक्शन कमीशन का ऐसा कहना है, जबकि राहुल गांधी का और तमाम अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि वोटिंग लिस्ट पर नजरसानी के नाम पर बकायदा लाखों वोटर्स को वोट डालने से रोकने की नापाक कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर फिलहाल पार्लियामेंट से आ रही है SIR पर बहस को लेकर। गुज़िश्ता कल SIR
पर पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टियों ने यानी कांग्रेस और तमाम पार्टियों ने जोरदार अंदाज में, शदीद अंदाज में एहतजाज किया। कांग्रेस ने बहस के लिए इल्तिवा का नोटिस दिया। यानी यह बात आप समझिए कि नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार, बीजेपी सरकार किसी मुद्दे पर बहस भी कराना नहीं चाहती है ताकि पोल न खुले। राहुल गांधी ने और तमाम अपोजिशन पार्टियों ने कहा कि SIR के जरिए से आवाम के वोट डालने का हक छीना जा रहा है, और अगर यह हक छीना जाएगा तो फिर जमहूरियत, सेकुलरिज्म कैसे मजबूत होगी। हुकूमत ने बहस कराने से इनकार कर दिया, यानी मोदी ने बहस कराने से इनकार कर दिया। अदालत में अब यह मामला ज़ेर समाअत है और बहस मुमकिन नहीं है। अब मामला यह है कि अगर यह सही बात है तो फिर हुकूमत बहस कराने से क्यों डर रही है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन को लेकर भी फिर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते होंगे कि राहुल गांधी का आज से 8 दिन पहले बयान आया कि इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी कर रहा है और वोटों की चोरी और हेराफेरी में सत्ता का पूरा साथ दे रहा है। राहुल गांधी ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर हमारी हुकूमत आती है और मामला सामने आता है तो अगर इलेक्शन कमीशन के अफसरान रिटायर भी हो गए हैं तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। और अब बड़ी खबर आ रही है कि ममता दीदी, मगरिबी बंगाल के वजीर आला, ने खुद कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की कठपुतली और बीजेपी के गुलाम की तरह काम कर रहा है। मरकजी इलेक्शन कमीशन के जरिए 4 अफसरान की मुअत्तली और FIR दर्ज करने के खिलाफ ममता दीदी ने एहतजाज किया है। मगरिबी बंगाल की मुख्यमंत्री दीदी ने बुध को झारग्राम में मुनक्कदा एक रैली में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर सख्त हमला किया और उन्होंने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के गुलाम की तरह काम कर रहा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के जंतर मंतर पर तेलंगाना के वजीर आला, तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने जबरदस्त अंदाज में मुजाहरा किया, आंदोलन किया। सदर जमहूरिया मुर्मू सभी बिलों को मंजूरी दे। तेलंगाना के वजीर आला ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया। ये एहतजाजी मुजाहरा तेलंगाना असेंबली के जरिए BC के रिजर्वेशन से मुतालिक बिलों को सदर जमहूरिया की तरफ से मंजूरी मिलने में ताखीर को पेश नजर रखते हुए ये एहतजाज, ये आंदोलन किया गया। रेवंत रेड्डी के साथ इस एहतजाजी मुजाहरा में तेलंगाना कांग्रेस के कारकुनान भी शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार पर, बीजेपी सरकार पर इल्जाम आयद किया कि वो कसदन, जानबूझकर इन बिलों को लटका रही है। काबिल जिक्र बात है कि मार्च 2025 में तेलंगाना असेंबली ने 2 अहम बिल पास किए थे जिसमें पसमानदा तबकात को तालीम, मुलाजमत, नौकरियां और मकामी बल्दियों में 42% रिजर्वेशन देने की सहूलत है। अब जो बिल वहां तेलंगाना असेंबली में पास किए गए हैं, सदर जमहूरिया की तरफ से ताखीर हो रही है। इसी को लेकर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को फौजदारी मुकदमा से अलग करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। बताया जा रहा है कि कानून की गलत तशरीह पर सुप्रीम कोर्ट गुस्सा हो गई और इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार के एक फैसले पर गुस्से का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर तौर पर कहा कि जस्टिस प्रशांत कुमार को आइंदा फौजदारी मुकदमात की समाअत न दी जाए और उन्हें किसी सीनियर जज के साथ डिवीजन बेंच में शामिल किया जाए। यह मामला उस वक्त सामने आया जब एक शख्स ने अपने खिलाफ दर्ज फौजदारी शिकायत को मनसूख करने के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया। मुद्दई कंपनी ने इल्जाम लगाया था कि उसने धागा सप्लाई किया लेकिन 7 लाख रुपए से ज्यादा की रकम अदा नहीं की गई। अब इन तमाम मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को फौजदारी मुकदमा से अलग करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट